جانے کون سے احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ وہ بائیں طرف کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ چند پل وہ سامنے دیوار کو دیکھتی رہی، جب اسے محسوس ہوا کہ وہ ابھی بھی مکمل بازل کی گرفت میں مقید تھی۔ اس نے آہستہ سے بازل کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ پھر اپنے سیدھے ہاتھ کی انگشت شہادت سے اس کی ہتھیلی پر آہستگی سے کچھ لکھنے لگی، جبکہ بازل اپنے بازو اور ہتھیلی پر نرم لمس محسوس کرتا بیدار ہو چکا تھا۔ ایک پل کو بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا تو معصومہ اس کی جانب پشت کر کے سوئی تھی، مگر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جاگ چکی ہے۔ پھر وہ معصومہ کی انگلی کا لمس اپنی ہتھیلی پر پوری توجہ سے محسوس کر رہا تھا۔ یقیناً وہ کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر بازل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اب وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ آخر لکھ کیا رہی ہے۔ میم عین صاد واو میم ہے معصومہ، وہ بار بار یہی الفاظ لکھ رہی تھی، جبکہ اس کی انگلیوں کی حرکت سمجھتے ہوئے بازل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں پہلے ہی تمہارا نام ہے جانا، وہ دل فریب انداز میں بولا۔ حسین رات کے بعد ایک خوبصورت صبح مبارک ہو، وہ اس کے کان کے قریب آ کر بولا تھا۔ اس کی بات سن کر معصومہ نے اپنی بند آنکھیں اور سختی سے میچ لی، جبکہ اس کی سانسوں میں ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ اس کے حواس مکمل طور پر بیدار ہو چکے تھے۔ کل رات کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے اور اب وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے بے آواز رونے لگی۔ اسے بالکل بازل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنی محبت، اس قدر چاہت، اس کے ہر انداز میں سچائی تھی کہ اب معصومہ کو مکمل طور پر وہ میسیج اور پکچر جھوٹے لگنے لگے تھے۔ اسے صرف بازل کی باتیں، اس کے جذبات اور وہ خود سچا لگ رہا تھا۔ باقی باتوں کو وہ اس کے پیار میں شاید بھول چکی تھی۔ یقیناً بازل شیرازی پورے استحقاق سے معصومہ کو اپنے سحر میں جکڑ چکا تھا، جبکہ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں سن کر بازل چونکا اور حیرت زدہ ہو کر معصومہ کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھا، اور ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے معصومہ کا رخ اپنی جانب کیا۔ معصومہ کا چہرے پر ہاتھ رکھ کر بے آواز رونا دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ اسے کتنا سمجھایا، کتنا یقین دلایا تھا ہر انداز سے کہ وہ اس کے لیے کیا ہے، مگر معصومہ اتنی بری طرح رو رہی تھی جیسے جانے کون سا ظلم کر دیا ہے اس نے اس کے ساتھ۔ آخر اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے معصومہ؟ اتنی بری طرح کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کی آنسوؤں سے تر پلکوں کو اپنی انگلیوں سے نرمی سے صاف کرتا دھیمی آواز میں پوچھنے لگا، آپ وعدہ کریں پہلے کہ میری بات مانیں گے؟ وہ اپنا ایک ہاتھ بازل سے چھڑوا کر اپنے چہرے کو صاف کرتی بھررائی آواز میں بولی، حد ہے یار، اب کون سی بات ہے آخر؟ ساری رات تو وعدے لیتی رہی ہو، اب کیا رہ گیا ہے؟ اچھا سنو، ان شارٹ میں کسی گناہ میں نہیں پڑوں گا، اب پلیز کوئی اور بات کرو ان وعدوں کے علاوہ، وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ اتنا سمجھانے کے باوجود معصومہ بی بی کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ اب تو حد ہو گئی ہے یار، مطلب یہ لڑکی تو کچھ نہ کر کے بھی چند دنوں میں ہی اسے اپنی انگلیوں پر چلا رہی تھی۔ اول تو بازل صاحب کی بات کوئی رد نہیں کرتا تھا، اور جو کبھی غلطی سے کر دیتا تھا تو اس کو بازل صاحب ایسی سزا دیتے تھے کہ وہ اگلی بار کی توبہ کر لیتا تھا۔ اور ایک یہ معصومہ بی بی ہے جو کل رات سے حد سے زیادہ بے تکا اور فضول بولے چلی جا رہی تھی، مگر تف ہے بازل تم پر، اس کو بچوں کی طرح بہلا رہے ہو۔ بس آخری بار ایک وعدہ کریں پلیز کہ آپ کبھی بھی کسی بھی لڑکی سے غلط تعلقات نہیں رکھیں گے نا؟ معصومہ اس کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ اس کی بات سن کر بازل نے اسے سخت تنبیہی نگاہوں سے دیکھا تو اس کے اس طرح دیکھنے سے معصومہ نے فوراً اپنی نگاہیں جھکا لی، جبکہ معصومہ کی یہ کارروائی بازل کو جاندار قہقہہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ بازل کے قہقہے پر معصومہ نے خفت سے سر اسی کے سینے میں چھپا لیا۔ معصومہ فجر کی نماز ادا کر کے دعا مانگ رہی تھی جب بازل نے اس کے برابر مصلی بچھایا اور نماز ادا کرنے لگا۔ بازل کو اپنے ساتھ نماز ادا کرتے دیکھ کر کئی آنسو معصومہ کی آنکھوں سے بہہ کر دوپٹے میں جذب ہوئے۔ وہ اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ بازل اس وقت ڈریسنگ روم میں چینج کر رہا تھا۔ معصومہ نے برش ہاتھ میں پکڑے ہی آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو نوری کھڑی تھی۔ سلام بی بی، وہ مرشد صاحب کا ناشتے پر انتظار ہو رہا ہے۔ معصومہ کا گلاب کی طرح کھلا نکھرا نکھرا چہرہ دیکھ کر نوری نے اسے سر سے پاؤں تک معنی خیزی سے دیکھا اور اپنا دوپٹہ دانتوں میں دبا لیا اور مسکراہٹ دباتے بولی، چلو تم ہم آ رہے ہیں۔ معصومہ اس کی معنی خیز مسکراہٹ پر جھینک کر بولتی فوراً دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی۔
और ख़ुद को नॉर्मल करती ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बालों को कैचर में मुकीद कर रही थी। वो तकरीबन यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो चुकी थी जब बाजिल उसके पीछे आन खड़ा हुआ और उसका स्कार्फ उतार कर कानों में छोटे छोटे आवेज़े पहनाने लगा। मासूमा उसका लम्स अपने कानों पर महसूस करती आंखें मूंद गई। जब बाजिल ने उसे दोनों कांधों से थामा तो मासूमा आंखें खोलकर उन बेहद खूबसूरत इयर रिंग्स को देखने लगी। कैसे लगे? उसका रुख अपनी जानिब करके उसके दोनों हाथ थाम कर वो पूछने लगा। बहुत अच्छे, शुक्रिया। वो हल्का सा मुस्कुराई। चलो नीचे चलते हैं, दादा जान नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे हमारा। वो उसका हाथ थामे दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा जब मासूमा के मुस्कुराते लब उसकी बात सुनकर सुकड़ गए और कदम वहीं जम। उसका रंग यकदम जर्द पड़ा। वो निगाहें झुकाकर बोलते हुए हिचकिचाई। क्या हुआ जाना? बाजिल की पेशानी पर एक लकीर उभरी थी। वो परेशानी से पूछने लगा। वो मुझे आज सबके साथ नाश्ता नहीं करना, प्लीज़। मैं गुलबीबी से यहीं मंगवा लेती हूँ, प्लीज़। वो इल्तजाइया अंदाज में बोली थी जबकि बाजिल को उसका चेहरा देखकर परेशानी ने आन घेरा। जहाँ एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। क्या हुआ है? माथे पर बल डाले सर्द अंदाज में उसने पूछा। कुछ भी नहीं, प्लीज़ आप जाएं, नाश्ता करें। वो अपने हाथ आहिस्ता से उससे छुड़वा कर पीछे हुई। इतना तो वो जानता था कि मासूमा को अगर दादा जान ने या किसी और ने कुछ कहा भी हो तो तब भी वो बुज़दिलों की तरफ पीछे तो नहीं हटेगी, बल्कि मज़ीद उन लोगों को ज़िच करने के लिए वहीं डाइनिंग टेबल पर सबके सामने बैठकर खाना खाएगी। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो खाना खाने से हिचकिचा रही है सबके साथ? क्या मसला है सबके साथ खाने में? इस बार उसके लहजे में सख्ती थी जो मासूमा ने बखूबी महसूस की और अपना सर झुका लिया। वो मुझे शर्म आ रही है। वो सर झुकाए इस अंदाज में बोली कि जैसे कोई मुजरिम अपनी सफाई देता है। मगर किससे और क्यों? वो बिल्कुल भी नहीं समझ सका कि वो क्या कहना चाह रही है। बाजिल, आप नहीं समझेंगे। वो उसकी नासमझी पर खिफ़त से रुख मोड़ गई। मासूमा, बाजिल की करख्त आवाज़ में पुकार पर मासूमा ने रुख उसकी जानिब किया। वो अभी नूरी आई थी। पता नहीं क्यों मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। प्लीज़ मुझे नहीं जाना नीचे। वो सर झुकाकर आहिस्तगी से बोली थी जबकि उसकी बात समझकर बाजिल के संजीदा चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट बिखरी। कोई बात नहीं जाना, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है जो तुम छुप रही हो। ये पुरानी औरतें हैं, उनकी नज़रें बहुत तेज़ होती हैं। वो मुस्कुराहट दबाता उसका दुपट्टा सर पर दरुस्त करता उसका हाथ थाम कर चलने लगा तो नाचार मासूमा को भी उसके साथ कदम मिलाने पड़े। वो डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए तो सब उन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुए। बाजिल एक नज़र सबको देखता थोड़ी बुलंद आवाज़ में सलाम करके कुर्सी पर विराजमान हुआ, जबकि मासूमा धीमी आवाज़ में सलाम करती बगैर किसी से निगाहें मिलाए सर झुकाकर कुर्सी पर टिक गई। मगर काइम पर नज़र पड़ते ही बाजिल के हाथ से अपना हाथ फ़ौरन खींच लिया। मासूमा की इस हरकत पर जहाँ बाजिल के स्पाट चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वहीं काइम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखरी। उन दोनों को एक साथ खुश देखकर काइम के दिल को सुकून पहुंचा था, नहीं तो उसे मासूमा की काफ़ी फिक्र थी। दादी जान, आप भी बैठकर नाश्ता करें। दादा जान को अगर कुछ चाहिए होगा तो दे दीजिएगा, और आप दोनों भी प्लीज़, जिसे जो चाहिए होगा वो खुद ले लेगा। बाजिल की भारी आवाज़ डाइनिंग हॉल में गूंजी। आखिर में उसने शीरीन साहिबा और चची को देखते हुए कहा तो सब उसकी जानिब मुतवज्जो हुए, माँ सिवाय दादा जान के, क्योंकि वो बज़ाहिर मसरूफियत से नाश्ता कर रहे थे। दादी जान ने उन्हें मुतवज्जो ना पाकर फिर से बाजिल को परेशान निगाहों से देखा तो उसने मासूमा के साथ वाली कुर्सी की जानिब इशारा किया। दादा जान का कोई रद्द अमल ना पाकर नाचार उन्हें बैठना पड़ा। दादी जान के बाद शीरीन साहिबा और चची भी उनके साथ कुर्सियों पर विराजमान हो गईं, मगर वहाँ मौजूद माजिद साहब और आबिद साहब को ये कार्रवाई कुछ खास पसंद ना आई कि मासूमा के बाद अब बाकी औरतें भी उनके बराबर में बैठेंगी। मगर हैरत उन सबको दादा जान के सारे मामले में ला ताल्लुकी जाहिर करने पर हो रही थी, जबकि बाजिल ने बेसाख्ता मासूमा की जानिब निगाहें की जो प्लेट पर झुकी तिरछी निगाहों से सब देख रही थी। आज तुम्हारे भाई सब बदलने की शुरुआत हो गई जाना। बाजिल ने थोड़ा मासूमा की सिमत खिसक कर उसके कान में सरगोशी की और उसके लिए ग्लास में जूस उंडेल कर उसके हाथ में थमाया। इस बात का मतलब, क्योंकि अगर आप ये पहले भी करते तो आपकी बात कौन सा दादा जान ने टालनी थी, फिर मेरे बाइस क्यों? मासूमा ने भी नासमझी से धीमी आवाज़ में निगाहें प्लेट पर जमाए बाजिल से पूछा, जबकि इस नई तब्दीली के बाइस सब अपनी अपनी सोचों में गुम प्लेटों पर झुके हुए थे। तभी मासूमा किसी को भी अपनी जानिब मुतवज्जो ना पाकर अब अपनी शर्म को भूल चुकी थी। इसके पीछे एक और कहानी है जाना, वो आहिस्तगी से कहता हुआ चाय का कप लबों से लगा गया।
जबकि मासूमा ने सवालिया अंदाज में अबरू उचकाए। फिर कभी बताऊंगा, अभी चलो तुम्हें देर हो रही है, वो धीमी आवाज़ में कहता चाय पीने लगा, जबकि उसकी बात पर मासूमा ने इस बात में सर हिलाने पर ही इत्तफा किया। यूनिवर्सिटी के आगे गाड़ी रोककर वो मासूमा को मुस्कुराकर गेट के अंदर जाता देख रहा था। जब वो अंदर चली गई तो बाजिल के मुस्कुराते लब सुकड़ गए और चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती दोहराई। स्टीयरिंग पर दोनों हाथों की गिरफ्त सख्त हो गई। कई बातें उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थीं। कल पूरा दिन उसने अपनी फैमिली के साथ गुजारा था, मगर वो बाकी मसलों को कैसे पसे पुष्ट डाल सकता था। बहुत सी बातें उसके दिमाग में चल रही थीं, जिनमें सरे फहरिस्त वो चाय वाला मामला था, जिसे वो बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकता था। परसों से साइलेंट मोड पर लगा मोबाइल जब जेब से निकाल कर देखने लगा, जिस पर उसने बेतहाशा मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स और नोटिफिकेशंस देखे, वो एक एक करके सारे पढ़ने लगा। रिमशा के काफ़ी टेक्स्ट थे कि उसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बासित और विशाल के भी टेक्स्ट थे कि एक नोटिफिकेशन पर बाजिल ठिठक गया। उसने मासूमा के मोबाइल में चिप और ट्रेसर फिट की हुई थी, जो उसके अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट थी। उस नोटिफिकेशन में लिखा था कि किसी ने मासूमा के मोबाइल को हैक किया है, जबकि इस इंकशाफ पर बाजिल के माथे पर शिकन उभरे, क्योंकि मासूमा का मोबाइल उसके खुद के और बासित या रिमशा के अलावा और कोई भी हैक नहीं कर सकता था। फिर आखिर कौन हो सकता है ये जिसने उसे चेक किया? जब उसने चेक किया कि किसने हैक किया है तो रिमशा का नाम आया। एक लम्हे से पहले बाजिल ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ दौड़ा दी। तेज तेज कदम उठाता वो ऑफिस में दाखिल हुआ। हॉल में उस वक्त रिमशा, हम्माद और साहिर अपने अपने लैपटॉप पर झुके काम में मसरूफ थे। बाजिल को हॉल में दाखिल होते देखकर तीनों फौरन अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। सलाम किया। रिमशा, तुमने मासूमा का मोबाइल हैक क्यों किया? स्पार्ट अंदाज में सलाम का जवाब देता वो रिमशा के सामने पहुंचकर सर्द अंदाज में पूछने लगा, जबकि रिमशा उसके करख्त अंदाज पर ही सहम गई। वो बॉस, मैं आपको मैसेज भी इसीलिए कर रही थी, उसी बारे में बताना था आपको। वो अपनी घबराहट पर काबू पाती जल्दी से बोली, क्या बताना था? उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो पूछने लगा, वो बॉस, मैम के मोबाइल पर किसी अननोन पर्सन के मैसेजेस आए थे परसों। आई थिंक आपने ईमेल चेक नहीं की थी कल तक, तो इसीलिए बासित ने आपको मसरूफ़ समझकर वो ईमेल चेक की। आपने कहा था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो मैं बासित मैम के मोबाइल को हैक कर सकते हैं। आपने कहा था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो मैं या बासित मैम के मोबाइल को हैक कर सकते हैं। इसीलिए हमने पहले आपको कॉल्स भी की, मैसेजेस भी, बट आपका रिस्पांस नहीं आया तो बासित ने मुझे कहा कि मैं चेक करूं हैक करके। बट सर, वो बाजिल के तने हुए चेहरे को देखकर रिमशा अपने माथे पर आया पसीना साफ करके जल्दी जल्दी सारी तफासिल बता रही थी। जब आखिर में बात करते वो खामोश हुई। हाँ तो फिर क्या हुआ? क्या हैक किया? हैक पता चला किसके मैसेजेस थे? रिमशा की बातें सुनकर उसे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि ये एक दिन की छुट्टी उसे काफ़ी महंगी पड़ रही है। बट सर, डेटा डिलीट कर दिया गया है और आपकी परमिशन के बगैर हम रिकवर कैसे कर सकते थे? इसलिए कल से मुसलसल मैसेजेस कर रहे थे हम आपको। रिमशा ने जल्दी से अपनी बात मुकम्मल की और बाजिल के स्पार्ट चेहरे को देखने लगी। आई होप सर के सब ठीक हो। बाजिल को पुरसोच अंदाज में अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता देखकर धीमी आवाज में वो पूछने लगी, बासित कहाँ है? उसने रिमशा को देखते हुए पूछा। अभी उसने बासित का पूछा ही था कि बासित विशाल के साथ हॉल में दाखिल हुआ और बाजिल को देखकर दोनों ने सलाम किया। बासित, 5 मिनट के अंदर मासूमा के मोबाइल का डेटा रिकवर करो, हरी आप। उन दोनों के सलाम का जवाब देता वो फौरन बासित से मुखातिब हुआ। ओके बॉस। उसका हुक्म सुनते ही बासित ने अपने हाथ में थामे बैग से लैपटॉप निकाला और अपनी मेज़ और कुर्सी की जानिब बढ़ा, जबकि बाजिल समेत सबका ध्यान बासित के लैपटॉप की जानिब था। हो गया। ठीक 5 मिनट में बासित ने पास खड़े बाजिल को मुतला किया। ओपन इट। बाजिल ने स्क्रीन पर निगाहें मरकूज करते हुए अगला हुक्म दिया, मगर जैसे ही बासित ने क्लिक किया, सामने एक तहरीर और तस्वीर देखकर सबकी आंखें हैरत से फैल गईं और फिर बासित समेत सबने ही अपना सर और निगाहें झुका लीं, जबकि बाजिल हनूज स्क्रीन को तके जा रहा था। उसके माथे पर बलों में इजाफा हुआ था। उसने जब्त करते हुए जबड़े सख्ती से भींच लिए। क्या बकवास है ये? वो धाड़ा था कि उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी थी। किसने भेजा ये? वो बासित को अपनी सुर्ख आंखों से देखता हुआ घुर्राया था। इस नंबर से। उसके खतरनाक तेवर देखकर बासित ने फौरन क्लिक करके नंबर सामने किया। साहिर, 10 मिनट के अंदर पता करो ये किसका नंबर है। अब वो कुछ फासले पर खड़े साहिर से मुखातिब हुआ। वो ओके करता हुआ फौरन अपने काम पर लग गया। बॉस, ये किसी उरूज नियाजी नाम की लड़की का नंबर है। 10 मिनट के अंदर ही साहिर ने उसे मुत्तला किया तो बाजिल ने अपने मोबाइल से निगाहें हटा कर देखा। एड्रेस निकालो इसका, तस्वीर दिखाओ मुझे इसकी।
बाजिल का अगला हुक्म सुनते ही साहिर ने लैपटॉप की स्क्रीन उसके सामने की और स्क्रीन पर मौजूद लड़की वही थी जो तस्वीर में उस होटल में बाजिल से टकराई थी। आहिस्ता आहिस्ता बाजिल को सारी बातें समझ आ रही थी। चाय पीने के बाद सर चकराना, नींद का आना, उस लड़की का टकराना, उसके करीब आना, मासूमा का अचानक इस हद तक बदगुमान होना के बाद रिश्ता ख़त्म करने तक पहुंच गई, मासूमा की बेएतबारी, ये कुछ भी इत्तफाक नहीं था बल्कि साजिश थी। हम्माद 1 घंटा, ओनली 1 ईयर, ओनली 1 आवर, मुझे ये लड़की यहाँ चाहिए, वो करख्त अंदाज में कहता अपनी कुर्सी पर बराजमान हो गया, जबकि रिमशा ने आंखों से बासित को इशारा किया कि शेख वाली खबर कैसे बताएं अब बॉस को, जबकि बासित ने लापरवाही से कांधे उचका दिए। उसकी लापरवाही पर रिमशा दांत पीस कर ही रह गई।